ઓકે, હવે સૌથી પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે જ્યારે તમે આપણે ક્વેશ્ચનર આમ તો એસપીએસએસ માં સમજાવીએ છીએ, પણ અત્યારે પ્રોબ્લેમ એ છે કે તમારી જોડે એસપીએસએસ નહીં હોય. એટલે જો એસપીએસએસ માં કરવા જઈશું તો એસપીએસએસ સોફ્ટવેર શોધવું, ડાઉનલોડ કરવું એ થોડું મુશ્કેલ થઈ જશે. એટલે અત્યારે આપણે એક્સેલમાં જ કરીએ છીએ એનાલિસિસ, બરાબર, જેથી તમે ઇઝીલી સમજી શકો, કારણ કે એક્સેલ ઇઝ ઇઝીલી અવેલેબલ. નાઉ હવે તમારે સૌથી પહેલા શું કરવાનું છે? કોડિંગ કરવાનું છે જે ક્વેશ્ચનર તમારી પાસે છે. Say for example, this is your questionnaire. Now, first of all, કોડિંગ કરવાનું છે. એટલે હવે તમારે કરવાનું એ રીતે છે કે સપોઝ, ધ્યાનથી સમજો, આપણે બધાનું કોડિંગ નથી સમજવાના, કારણ કે સિમિલર ટાઈપના જે ક્વેશ્ચન છે એમાં કોડિંગ સેમ થશે. સપોઝ પહેલું, યોર ચાઇલ્ડ ઇઝ ઇન, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બરાબર છે. તો આ જે ક્વેશ્ચન છે સિંગલ સિલેક્શન ક્વેશ્ચન છે. સિંગલ સિલેક્શન ધ્યાનથી સમજી લો. જેટલા ક્વેશ્ચન આમાં સિંગલ સિલેક્શન છે આખી ક્વેશ્ચનરમાં, એમાં 1 2 3 4 5 નંબર કોડિંગ કરવાના. એટલે કંજન કે પ્રજ્ઞેશ કે મિત્તલ, પ્રાઇમરી એટલે 1 કહેવાય. પ્રાઇમરીને શું કોડિંગ કરવાનું? 1. કંચન, તારે જો બુકમાં લખવું હોય તો પ્રાઇમરી કોઈ એક ટીક પ્રાઇમરી કર્યું હોય તો એને 1 કોડિંગ કરવાનું, સેકન્ડરી ટીક કર્યું હોય તો 2 કોડિંગ કરવાનું, અને હાયર સેકન્ડરીને 3 કોડિંગ કરવાનું. સિંગલ સિલેક્શનમાં આ રીતે 1 2 3 4 5 6 જેટલા નંબર હોય એટલા આપી દેવાના. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન 2 અગેન સિંગલ સિલેક્શન, તો 1 જીએસઈબી. આ યાદ રાખવાનું કોને શું કોડિંગ કર્યું છે, કારણ કે છેલ્લે કોડિંગ થી ઉપરથી આપણે પાછા ટેબલ બનાવવાના છે. એટલે કોડિંગ જો ભૂલી ગયા તો આડાવરું થઈ જાય કે જીએસસીબી પહેલો આપ્યો અને સીબીએસસી પહેલો કરી દીધો તો આખો ડેટા ઊંધો થઈ જાય. એટલે 1 જીએસસીબી ના આપો, 2 સીબીએસસી ના આપો અને 3 અધર ના આપો. એ જ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 3 માં સિંગલ સિલેક્શન જ છે ને, તો 1 ઇંગ્લિશ મીડિયમ, 2 ગુજરાતી મીડિયમ અને 3 કોને આપશો? અધર ને. પછી ક્વેશ્ચન નંબર 4, વોટ ઇઝ યોર પ્રેફરેબલ સ્કૂલ? તો પ્રેફરેબલ સ્કૂલ તમારી શું છે? તો મોર્નિંગ ને તો 1, આ પણ સિંગલ સિલેક્શન છે, તો મોર્નિંગ ને 1, આફ્ટરનૂન ને 2nd, ઓર ડે કેર ને 3rd. પછી નીચે ક્વેશ્ચન નંબર 5, ખબર પડે છે ને, 1 અને 2 આપી દો. 1 એટલે સ્માર્ટ સ્કૂલ, 2 એટલે રેગ્યુલર સ્કૂલ. ક્વેશ્ચન નંબર 6, 1 એટલે યસ અને 2 એટલે નો. ક્વેશ્ચન નંબર 7, હવે ધ્યાનથી જોજો, એબીસીડી પ્રમાણે જવાનું, સિક્વન્સ હોવું જોઈએ, લાઇનસર હોવું જોઈએ. એટલે એક કોના, આ પણ સિંગલ સિલેક્શન છે, એક કોને આપશો? 10,000 to 25,000 ને 1 આપવાનો, પછી 25 to 50,000 ને 2 આપવાનો, 50,000 to 1 lakh ને 3 આપવાના, અને મોર દેન 1 lakh ને 4 કોડિંગ કરવાનું. પછી જ રીતે ક્વેશ્ચન 8, 1 રિલેટિવ ને આપો, એબીસીડી છે ને એ પ્રમાણે આપી દેવાના. 1 રિલેટિવ, 2 ફ્રેન્ડ, 3 નેબર, ડી ચાઇલ્ડ ઇટસેલ્ફ, ઈ ટ્યુશન ક્લાસીસ અને એફ અધર. 9 માં પણ સેમ, A highly important, B important, 3 moderate, 4 not important અને 5 કોને આપવાનો? Not at all important. 10 માં પણ એવું, 10 માં પણ 1 yes ને આપો, 2 no ને આપો, 3 can't say ને આપો. કઈ વાંધો નહીં બગુ, હું આ પતાઈને તને આવું, હો ને? ચલો આટલે સુધી ક્લિયર છે કંચન? યસ સર, ક્લિયર. સિંગલ સિલેક્શન જેટલા ક્વેશ્ચન છે ને મિત્તલ? યસ સર. ઓકે, હવે ખંજન કરવાનું તારે એવું છે કે હું તને જે કોડિંગ કરાવું અને એક એક્સેલ શીટ બનાવતા શીખવાડીશ એન્ટ્રી કરવા માટે. એ એક્સેલ શીટ પહેલા તારે બનાવવાની છે. બનાવ્યા પછી આજે જ 10-15 મિનિટનું કામ છે, એ મને મોકલવાની, હું જોઈ લઉં, પછી તારે બાકી બંનેને મેલ કરી દેવાનો, અને પછી જેને જે ક્વેશ્ચનર ભરાઈ છે એ લોકો એન્ટ્રી કરીને કોઈ એકને મોકલાઈ દે, અને પછી એક જ જણે ગ્રાફ બનાવવાનું કામ કરવું પડશે. કારણ કે કમ્બાઈન સેશન શું છે કે કમ્બાઈન કર્યા વગર ચાલશે જ નહીં. કમ્બાઈન કર્યા વગર નહીં ચાલે તમારે ગ્રાફ ને એ બધું બનાવવા માટે. સમજી ગયા? ચલો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 11 નું કોડિંગ. હવે આ સ્કેલ વાળો ક્વેશ્ચન છે, ધ્યાનથી જોજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ. હવે આમાં કોડિંગ શું કરવાનું ખબર છે? હવે આમાં બંને કોડિંગ થશે, આલ્ફાબેટે કોડિંગ કરવું પડશે ને નંબર પણ કોડિંગ કરવા પડશે. કઈ રીતે? જો સાંભળ, આ લોકેશન છે ને એને
એલ્ફાબેટ્સ નો એ આપવાનો, સ્મોલ એ આપ કે કેપિટલ એ આપ, ગમે તે, સ્મોલ એ. પછી ટીચિંગ ને બી આપ, ફીઝ ને સી આપ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડી, ટાઈમિંગ ઈ, પછી એફ જી એચ આઈ જેટલે સુધી જતું હોય એટલે સુધી આપી દેવાનું. ક્વોલિફાઈડ ટીચર એબીસીડી એફ જી, ખબર પડી? આને એબીસીડી કોડિંગ કરવાનું. અને બીજું આ જે સ્કેલ છે ને એને 1 2 3 4 5 કોડિંગ કરવાનું. 1 એટલે હાઈલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, 2 એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ, 3 એટલે ન્યુટ્રલ, 4 એટલે નોન ઇમ્પોર્ટન્ટ અને 5 એટલે નોટ એટ ઓલ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સમજો સ્કેલમાં બે કોડિંગ થશે. જે ફેક્ટર છે ને, ફેક્ટર એમાં એબીસીડી કોડિંગ થશે, અને જે સ્કેલ છે ઇન ધેટ યુ હેવ ટુ કોડ 1 2 3 4 5. ક્લિયર? ચલો આટલું યાદ રાખજો. નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 12, સેમ ટુ સેમ. ક્વેશ્ચન નંબર 12 પણ સેમ. આ જે સેન્ટેન્સીસ લખ્યા છે, આ પહેલા સેન્ટેન્સ ને એ કોડિંગ, પછી નીચેના ને બી સી ડી ઈ એફ જી કોડિંગ, અને અહીંયા શું કોડિંગ કરવાનું? 1 2 3 4 5 કોડિંગ કરવાનું. સેમ ટુ સેમ. ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 13, આ તો સિંગલ સોરી આ રેન્ક છે. હવે જોજો રેન્કમાં શું કરવાનું. રેન્કમાં એબીસીડી કોડિંગ કરવાનું. લખી દે, રેન્કમાં એબીસીડી એટલે કે જો એ એટલે એજ્યુકેશન ક્વોલિટી, બી એટલે માઇગ્રેશન, સી એટલે ડિઝાયર રિઝલ્ટ, ડી એટલે લેક ઓફ એક્ટિવિટી, ઈ એટલે લેક ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ને એફ એટલે ટીચર્સ ટર્નઓવર. મલ્ટી ચોઇસ અને રેન્ક હોય ને એટલે એબીસીડી કોડિંગ કરવું પડે. ક્લિયર? ચલો પછી ક્વેશ્ચન નંબર 4, આ તો સિંગલ સિલેક્શન છે એટલે એ ને 1 આપ અને બી ને 2 આપ. પછી ક્વેશ્ચન નંબર 15 પણ સિંગલ સિલેક્શન છે એટલે યસ ને 1 આપ અને નો ને 2 આપ. સિંગલ સિલેક્શન એટલે 1 2 3 4 5 આલ્ફાબેટિક્સ. ખાલી રેન્ક હોય ને તો તારે એબીસીડી કોડિંગ કરવું પડે, અને પેલો સ્કેલ વાળો હોય તો બે કોડિંગ આવે, એબીસીડી આવે અને ઉપર આલ્ફાબેટ આવે. ચલો હવે ડેમોગ્રાફિક મને કહી દે. ડેમોગ્રાફિકમાં તો બધામાં સિંગલ સિલેક્શન છે. ખંજન, એકચ્યુઅલી ડેમોગ્રાફિકમાં તમારે શું કરવું પડશે? તમારે એક રેન્જ બનાવવી પડશે. ભલે આપણે ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. હાલો, Yes, sir. એકચ્યુઅલી આ ઓપન એન્ડેડ નહીં રખાય, એનું કારણ છે કે આપણે ગ્રાફ બનાવવાનો છે કે કેટલી એજના કેટલા છે. સમજો? એટલે જો સમજાવું તને. જેન્ડર એટલે 1 મેલ ને આપવાનું ને 2 કોને આપવાનું? ફિમેલ. પછી મેરિટલ સ્ટેટસમાં 1 મેરિડ ને 2 ડાયવોર્સ અને 3 વિડો. ખંજન, મેરિડ છે તો અનમેરિડ ક્યાં? હાલો, Sir, unmarried માં તો child નહીં આવે ને? હા સોરી માય મિસ્ટેક. ઓકે ચાલો. મેરિડ 1, ડિવોર્સ 3 અને વિડો 4. એટલે મોસ્ટલી બધા મેરિડ જ આવશે. બરાબર? હવે એજમાં છે ને તારે એક બાયફર્કેશન કરવું પડશે. સાંભળ, શું કરવું પડશે? લેસ ધેન 25 યર. સમજો? પછી 25 ટુ 35 યર, 35 ટુ 45 યર, 45 ટુ 55 યર અને મોર ધેન 55 યર. હા, અને બહુ ઉપર એજ વાળા ના લીધા હોય તમે તો તમારે લેસ ધેન 25 યર, 25 ટુ 35, 35 ટુ 45, 45 ટુ અબો. કારણ કે બહુ એજ વાળા ના લીધા હોય, કારણ કે ચાઇલ્ડ તો નાના લોકોના જ હોય, એટલે તમે 45 ટુ અબો આવું તારે બનાવી દેવું પડશે. એટલે હવે તમે કોઈને એવી એજ પૂછી હોય કે કોઈ એવું કીધું કે અમારી એજ 32 છે, તો જેમાં આવતો એમાં તમારે જાતે ટીક કરી દેવાનું. ખબર પડી? એટલે તમારે રેન્જ બનાવવા પડશે. એ રીતે ક્વોલિફિકેશનમાં રેન્જ બનાવવા પડશે. ક્વોલિફિકેશનમાં શું બનાવવું પડશે? ખબર પડે છે? ક્વોલિફિકેશનમાં શું આવે? બિલો એચએસસી, પછી ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ અને અધર્સ. બિલો એચએસસી, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ અને અધર્સ. સિમ્પલ. પછી ઓક્યુપેશનમાં શું આવે? તો બિઝનેસમેન, પ્રાઇવેટ જોબ, ગવર્મેન્ટ જોબ, પછી ફાર્મર, આજે 4-5 હેડ અને બાકી અધર. અને ઇન્કમમાં પણ તારે હેડ બનાવવા પડશે. ભલે અહીંયા તે નથી બનાયા, પણ હેડ એટલા માટે કારણ કે આપણે કોડિંગ કરીને એન્ટ્રી શેર કઈ રીતે કરશું? કારણ કે એજ તો દરેકની અલગ અલગ હોય. તો એટલું બધું. सर यस सर. हेलो सर, वो हमने क्वेश्चन मैंने जब फिलअप करा है ना तो वो हाउसवाइफ भी है तो उनकी तो इनकम नहीं आएगी ना. तो इनकम में नहीं लिखना है. नहीं, हमको तो फैमिली इनकम चाहिए. समझी? हमको किसकी इनकम चाहिए? टोटल फैमिली इनकम. भले आप मेल से भरवा रहे हो या फीमेल से भरवा रहे हो, हमको इनकम दैट इज टोटल फैमिली इनकम. क्योंकि इंडिविजुअल इनकम इंपैक्ट नहीं करती यहाँ पर. कभी कभी
कहां पर भी आप एडमिशन लेते हो तो फैमिली इनकम ज्यादा इम्पेक्ट करती है, क्योंकि अगर आपकी इनकम भले 10,000 है, बट अगर आपके जो ब्रदर है या आपके जो फादर है, ग्रैंडफादर, वो अगर अच्छा कमाते हैं Yes. तो आप अच्छे स्कूल में रख सकते हो, भले आपका इनकम 10,000 है। ठीक है, Okay, sir. खंजन समझ में आया क्या तुझे बनाना है? वो यस सर। और इनकम में भी बना देना कि इनकम में ऐसा बनाना लेस देन 15,000, 15,000 टू 25,000, 25,000 टू 35,000 पर मंथ, पर मंथ ऐसे बना देना। फिर आप खुद टिक कर देना कि किस में आता है वो लोग। और कोडिंग समझ में आ तो गया? सर वो तीनों की क्वेश्चनर में करना पड़ेगा ना? करना नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। देख, तूने कोडिंग, तूने एक फॉर्मेट बना दिया एक्सेल में, क्लियर? अभी तू यस, अच्छा सर एक्सेल की बात है, गॉट इट। हाँ एक्सेल, अभी तू उसको भेजेगा तो उसको जैसे लागू होता है वो वैसे बना देगा। समझ में आया? गॉट इट सर। एक्सेल में करना है, अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया कोडिंग, अभी हम एंट्री करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। मुझे ये एक्सेल आपको दिख रही है? No, sir. ओके, तो मुझे एक और मेथड यूज करनी पड़ेगी। स्क्रीन, मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ओके, चलो अभी क्वेश्चनर दिख रही है Yes, sir. और अभी एक्सेल। Yes, sir. ओके चलो देखो ध्यान से कैसे कोडिंग करना है। मैं कुछ देखना कैसे। चलो, जब सिंगल सिलेक्शन क्वेश्चन हो, सिंगल सिलेक्शन, तो ऐसे लिखना है। एंट्री की बात करते हैं, सॉरी कोडिंग की नहीं। यहाँ पे पहले लिख देना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर इसीलिए लिख रहे हैं कि हम कौन से क्वेश्चनर का एंट्री कर रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, कितनी क्वेश्चनर हुई वो तो पता होना चाहिए ना, इसीलिए सीरियल नंबर। अभी सिंगल सिलेक्शन जितने भी क्वेश्चन है देख ले, कितने सिंगल सिलेक्शन है, पहले पहला सिंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 10 तक सिंगल सिलेक्शन है। फिर तो क्या करना है पता है, सिंगल सिलेक्शन हो तो ऐसे कर देना है, देख, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, ऐसे बना देना है। ठीक है, ऐसे बनाई जब तक, एक मिनट, मैं समझ में आया क्या करना है? हेलो, आप ऑडियो ऑन ही रखो। यस सर। तो आपको क्या, Okay. आप सिंगल सिलेक्शन हो ना तो क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे लिख देना है। अभी चलो, अभी कौन सा आया रैंक स्केल वाला क्वेश्चन आया। मैं दोनों स्केल वाले आपको एंट्री करना नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 सिखाऊंगा, 12 आप समझ जाएंगे ना फिर। चलो, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 में अभी हमने क्या कोडिंग दिया है, एबीसीडी दिया है। ए किसको दिया है कोडिंग, लोकेशन को। बी किसको दिया है, टीचिंग। सी किसको दिया है, फीस। तो अभी देखो, जब स्केल वाला क्वेश्चन है ना तो ऐसे कोडिंग करना है, देखना। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, तो देखना क्वेश्चन नंबर 11 ए मतलब क्या, लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 बी, क्वेश्चन नंबर 11 सी, क्वेश्चन नंबर 11 डी, क्वेश्चन नंबर 11 ई। समझ में आ रहा है मैं क्या कोडिंग कर रहा हूं? Yes, sir. जब ये स्केल वाला हो ना तो ये एबीसीडी कोडिंग करना है, जितना एबीसीडी एफ तक हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जब तक हो आपको ऐसे बना देना है, जब तक हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जब तक हो बना देना है। बना देंगे ना आप लोग? ओके चलो फिर आगे। फिर ये स्केल वाला है सेम टू सेम, तो ये मैं नहीं समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, अभी ये रैंक वाला है। तो रैंक में क्या करना है, हमने रैंक में क्या कोडिंग किया था, ए बी सी डी ई एफ, याद रखना ए बी सी डी एफ किया था। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा आया, क्वेश्चन नंबर 10 ए, सॉरी 12, क्वेश्चन नंबर 12 बी, क्वेश्चन नंबर 12 सी, क्वेश्चन नंबर 12 डी, क्वेश्चन नंबर 12 डी ई और क्वेश्चन नंबर 12 एफ। यहां तक कोडिंग था। देखो फिर से ए बी सी डी ई और एफ, तो ये हमने रैंक में एबीसीडी कोडिंग करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ए, क्वेश्चन नंबर 13 बी, 13 सी ऐसे कर देना है। हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 15 है, वो सिंगल सिलेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सिंगल सिलेक्शन हो तो एक ही कॉलम, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है देखना,
जेंडर है तो जेंडर ही लिख दो। फिर मैरिटल स्टेटस में शॉर्ट में लिख रहा हूं एमएस। फिर एज है हमारे पास। फिर क्वालिफिकेशन है QUA क्वालिफिकेशन है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, ऑक्यूपेशन है और हमारे पास क्या है, इनकम। आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पर ऐसा कोडिंग किया एज और ऐसे, वहां पर क्यों नहीं किया? मैंने यहाँ पर क्यों क्वेश्चन नंबर लिखा पता है? यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखा कि हम वहां पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर तो एज और जेंडर लिख सकते हैं, छोटा सा है तो इसीलिए ये आपका एक्सेल शीट बना दिया। क्लियर? अभी आपको क्वेश्चनर का एंट्री करना है। ये आपका क्वेश्चनर हो गया। अभी आपको क्वेश्चनर का एंट्री करना है। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चनर मतलब यहाँ पे 1 लिख दो, पहला क्वेश्चनर एंट्री कर रहे हो। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते जाना। यहां तक कोई क्वेरी है कि समझ में आ गया? कोई क्वेरी है तो पूछ लो। कंजन? सर जो 12 क्वेश्चन है उसमें सेम रहेगा 1A 2B ऐसा? क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या रहेगा? 12A 12B 12C 12D 12E 12F G। समझ में आ गया? ओके सर। देख 12A 12B 12C, मेरा कर्सर दिख रहा है तुझे? 12D 12E 12F एंड 12G। समझ में आया? यस सर। सेम टू सेम जैसे 11 में किया वैसे ही। क्लियर? चलो अभी एंट्री कैसे करते हैं देखना, एंट्री इजी है। मैं सिंगल सिलेक्शन का एक बार समझा देता हूँ। चलो हम कुछ आप ऑडियो ऑफ कर दो, किसी का आवाज आ रहा है पीछे से, ऑडियो ऑफ कर दो। क्वेरी है तो ऑडियो ऑन करके पूछ लेना, तुरंत ही पूछ लेना इन बिटवीन। हाँ, ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है कि सर बोलूं मैं। आपको लग रहा है क्वेरी है तो पूछ ही लो, क्योंकि हम वैसे भी इतना टाइम दे रहे हैं। चलो अभी आपको क्या करना है पता है? अभी मैंने पहला क्वेश्चन किसी के पास आपने भरवाया और हमने 3 ऑप्शन दिए थे, उसने टिक किया सेकेंडरी पर। उसने आपको क्या आंसर दिया? सेकेंडरी। ये कौन सा क्वेश्चन है? 1। तो ध्यान से देखना, सेकेंडरी को हमने क्या कोडिंग दिया था? 2। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। क्वेश्चन 1 में उसने सेकेंडरी पे टिक किया है कि आप कहां पे पढ़ते हो, तो सेकेंडरी, योर चाइल्ड इज इन सेकेंडरी। तो किसी ने सेकेंडरी पे टिक किया है तो 2 लिख दो। अगर किसी ने प्राइमरी पे टिक किया होता तो यहाँ पे क्या लिख दे? 1। और किसी ने हायर सेकेंडरी पे क्लिक किया होता तो यहाँ पे हम क्या लिख देते? 3। हर एक में ऐसा ही करना है, जिस पे टिक किया है वो कोडिंग लिख देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 कि आपका चाइल्ड कौन से कोर्स में पढ़ रहा है? किसी ने टिक किया है एनी अदर, तो एनी अदर की टिक किया, तो एनी अदर तो हमको कौन सा कोड दिया था? 3 कोड दिया था ना, वो लिख दो, सिंपल। फिर कौन से मीडियम में पढ़ते हो? किसी ने टिक किया है गुजराती मीडियम, तो गुजराती मीडियम। सपोज ऐसा हो, जरूरी है कि मैं बोल रहा हूँ वैसा ही क्वेश्चनर होगा, मैं तो सिर्फ वैसे ही बोल रहा हूँ। किसी ने टिक किया गुजराती मीडियम, चलो सॉरी इंग्लिश मीडियम, ऐसा मान लो किसी ने इंग्लिश मीडियम में टिक किया है, तो इंग्लिश मीडियम को हमने कौन सा कोडिंग दिया है? 1। तो 1 लिख दो, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 लिख दो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मॉर्निंग शिफ्ट में हो, आफ्टरनून में हो कि डे केयर, किसी ने टिक किया हम डे केयर में है, तो डे केयर को कौन सा कोड दिया था? 3। तो 3 लिख दो। समझ में आ रहा है? फिर क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ऑप्शन है, 1 मतलब स्मार्ट स्कूल और 2 मतलब रेगुलर स्कूल। अगर उसने स्मार्ट स्कूल में टिक किया है तो 1 रखो, अगर उसने रेगुलर स्कूल में टिक किया है तो 2 लिखो। जो उसने टिक किया है वो आपको कोडिंग लिख देना है, सिंपल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, चलो यस बोला हो तो क्या लिखेंगे? 1 और नो टिक किया हो तो 2। પછી ये इनकम आप कितना एक्सपेंस करते हो? चलो अगर किसी ने टिक किया है कि मैं 25,000 to 50,000 एक्सपेंस करता हूं, तो उसको हमने कौन सा कोडिंग दिया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। तो 7 में हम क्या लिख देंगे? फिर से 7 में किसी ने क्या टिक किया? हम 25 to 50,000 खर्चा करते हैं, तो इसको हमने सेकंड कोडिंग दिया है तो आप 2 लिख दो। अगर किसी ने बोला है कि 50,000 to 1 लाख खर्चा करते हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? जो बोला है वो लिख देना है। फिर आगे 8 में भी कर पाओगे ना? अगर किसी ने बोला है कि हमको फ्रेंड के पास से पता चला, तो फ्रेंड को कौन सा कोडिंग दिया है हमने? 2, तो वहां पे 2 लिख दो क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से, किसी ने बोला कि नॉट इंपॉर्टेंट, सपोज किसी ने टिक किया कि ये नॉट इंपॉर्टेंट, तो नॉट इंपॉर्टेंट को हमने कौन सा कोडिंग दिया है? 4। 1 2 3 4, तो 4 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10, यस टिक बोला हो तो 1 लिखो, नो बोला हो तो 2 लिखो, 3 बोला हो तो 3 लिख दो। समझ में आया? यस सर।
सब कुछ समझ, सिंगल सिलेक्शन हो ना उसमें तो क्या करना है, जो टिक किया है वो कोडिंग मैंने आपको लिखवाया, कौन सा कोडिंग है वही टिक कर देना है। क्लियर है प्रज्ञेश? क्लियर। मित्तल क्लियर है सर। एंड कंजन, ठीक है ना। चलो अभी हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखना, मैंने सब नहीं लिखा है, मैंने पहले 3-4 ही लिखे हैं। मैंने 11 क्वेश्चन में कितने लिखे हैं, देखो 11 क्वेश्चन में मैंने कितने लिखे हैं, 11A 11B C D E तक ही लिखा है, ठीक है। आपको तो पूरा लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना। 11 मतलब क्या, 11A, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11A। तो 11A मतलब क्या, लोकेशन। देखना ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। 11A मतलब क्या, लोकेशन। अभी देखो लोकेशन में वो पांचों में से कहीं पर भी टिक कर सकते हैं। ये सुनो, लोकेशन में वो पांचों में से कहीं पर भी टिक कर सकते हैं। अभी सुनो, किसी ने टिक किया है इंपॉर्टेंट, किसी ने कहां पर टिक किया है इंपॉर्टेंट, तो बोलो इंपॉर्टेंट को हमने कौन सा स्कोर दिया था, 2। A2। हाईली इंपॉर्टेंट को 1 दिया था, इंपॉर्टेंट को 2, न्यूट्रल को 3 दिया था ना। तो देखो लोकेशन में उसने इंपॉर्टेंट बोला, इंपॉर्टेंट मतलब 2, तो लोकेशन कौन सा है, 11A लोकेशन है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर 11B टीचिंग पेडागोजी, टीचिंग पेडागोजी ने उसने हाईली इंपॉर्टेंट पे टिक किया है, यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट, तो टीचिंग हाईली इंपॉर्टेंट मतलब क्या, 1। समझ में आ रहा है कंजन? यस सर। देखो अभी फीस में, फीस आपके लिए क्या है, तो किसी ने फिर से हाईली इंपॉर्टेंट टिक किया है, फिर से, तो फिर से फीस मतलब सी मतलब फीस है, 11C मतलब फीस, तो फिर से हाईली इंपॉर्टेंट, तो हाईली इंपॉर्टेंट क्या है, 1। समझ में आया? वैसे ही आपको एंट्री करते जाना है, हो जाएगा। यस सर। कोई क्वेरी है? नो सर। हमारे पास टाइम बहुत कम है इसीलिए, हाँ थोड़ा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम टू सेम, ए इसमें क्या लिखा है, क्या टिक किया है, वो 1 2 3 5 लिख देना है, जो भी टिक किया हो, सेम टू सेम। चलो क्वेश्चन नंबर नो 13। प्रॉब्लम सर। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, रैंक। देखो ABCDEF ऐसे रैंक दिए हैं, ABCDEF, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ तक F तक रैंक है। अभी क्या करना है, सपोज किसी ने, अभी यहाँ पे सबने रैंक दिए होगे कि नहीं दिए होगे, एजुकेशन को कोई रैंक दिया होगा, माइग्रेशन को कोई रैंक दिया होगा, रिजल्ट को कोई रैंक दिया होगा, एक्टिविटी को कोई रैंक दिया होगा, सबको रैंक दिया होगा। तो आपको क्या करना है, चलो समझ लेते हैं, किसी ने यहाँ पे 2 रैंक दिया है, माइग्रेशन को 1 रैंक दिया है, डिजायर को 3 रैंक दिया है, लेक ऑफ एक्टिविटी को 6 दिया है, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 दिया है, तो इसको कौन सा दिया होगा, 4 दिया है। ये रैंक किसी ने दिया है, तो आपको क्या करना है पता है, ये रैंक लाइन से लिख देने हैं। कौन से रैंक है याद कर लो, 2 1 3 6 5 4, देखो ऐसे 2 1 3 6 5 4 लिख दिए रैंक। जिसने जो रैंक दिए हैं लाइन से लिख देने हैं। समझ में आया कंजन, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ऐसे ही। अभी क्वेश्चन नंबर 14 तो सिंगल सिलेक्शन है, वो तो आप कर पाएंगे ना, नो बोला है तो 1 और यस बोला है तो 2। 15 में यस बोला है तो 1 और नो बोला है तो 2। सेम टू सेम आपको क्या करना है, डेमोग्राफिक में भी करना है। चलो किसी ने मेल बोला हो तो जेंडर में आप क्या लिखेंगे, 1, और फीमेल बोला हो तो 2। फिर मैरिटल स्टेटस में किसी ने डाइवोर्स बोला हो तो आप क्या लिखेंगे कंजन? यस सर, 2। समझ में आ गया? वैसे एज में भी आपको बना देना है। कर पाएंगे डेटा एंट्री? यस सर। कोई क्वेरी है? नो सर। नो सर। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं, आपको थोड़ा ग्राफ कैसे बनाना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है अभी, ठीक है। इसमें आप जितना समझ पाओ उतना अभी करो, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके चलो, अभी मैं आपको समझा रहा हूं डेटा कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे, टेबल कैसे बनाते हैं। चलो अभी मेरे पास एक वेट अ मिनट, डेटा एनालिसिस। अभी देखो मैंने एक क्वेश्चनर का एंट्री किया हुआ है, कंजन ध्यान से देखना सब लोग। जिसको डेटा एनालिसिस करना है उसकी बात है, जो डेटा एनालिसिस करने वाला है तीनों में से, ठीक है। इसका रीजन ये है कि किसी एक को ही करना पड़ेगा, तीनों साथ में नहीं कर सकते आधा आधा, क्योंकि तीनों को एंट्री कर सकते हैं अलग अलग। पहले खंजन या कोई एक,
पहले फॉर्मेट बना देना एक्सेल में, मुझे भेज देना, मैं ओके बोलूं कि सही है, फिर आप तीनों को सेंड कर लेना, और तीनों ने जो जो क्वेश्चनर भरवाई है, और बाकी आप 1-2 दिन में थोड़ी ज्यादा क्वेश्चनर भरवा लेना और वो एंट्री कर देना, फिर 1-2 दिन में खंजन को भेज देना या किसी को भी जो डेटा एनालिसिस करने वाला है, जिसको इसमें ज्यादा समझ में आता है और ये सीखने जैसा है। तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरप्रिटेशन कैसे लिखते हैं, जो मुझे आप एक बार टेबल बना दो और ग्राफ बना दो, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे डेटा एंट्री करते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है डेटा एंट्री सॉरी एनालिसिस कैसे लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन। पहले आप टेबल बना दो, ग्राफ बना दो, ठीक है? ओके चलो। खंजन, ये एक्सेल शीट दिख रही है कलर वाली? यस सर। ओके, अभी इसमें मैंने 100 क्वेश्चनर की एंट्री की है। कितने क्वेश्चनर की एंट्री है? 100, ठीक है? पुरानी कोई क्वेश्चनर है उसकी एंट्री है। अभी मैं आपको टेबल लाना सिखा रहा हूँ। आपने एंट्री तो कर दिया, चलो आपने सब क्वेश्चनर एंट्री कर दी, बट अभी अगर आपको टेबल बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, आपको टेबल और ग्राफ बनाने हैं, सिंपल। चलो कैसे करने पता है? फिल्टर का ऑप्शन आता है, पता है ना वो तो आपको, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। अभी मैं निकाल देता हूं, आपको क्या करना है, पहली जो रो है ना उसको फिल्टर कर देना है। फिल्टर तो आप जानते ही हो ना? ओके यस सर। अभी देखो ऐसे टेबल बनाने हैं, ऐसा हो ना, तो मैं आपको ये एक्सेल शीट भेज रहा हूं फिर बाद में, ये एक्सेल शीट देखो। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, डू यू इन्वेस्ट एनीवेयर? आपका नहीं है ये क्वेश्चन, है आपका नहीं है, ये किसी और का बना हुआ, मैंने ये मैं क्लास में समझाने के लिए यूज करता हूँ, ये उसका है, ठीक है? इसमें सब कुछ लिखा है कैसे करते हैं, बट ये कैसे आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो, और अगर आपको कोई क्वेरी हो ना तो आप खुद ये एक्सेल शीट में खुद प्रैक्टिस करके, नीचे 4 टैब है, उसमें आपको पहली 2 टैब ही यूज करनी है, बाकी 2 याद नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, ये डेटा एंट्री देखो और टेबल कैसे बनाया वो देखो, तो आपको आइडिया आ जाएगा। आइडिया नहीं आए ना तो मुझे कॉल करना है फिर, ठीक है? जब आप टेबल बनाने बैठो तब। रंजन, समझ में आ गया? यस सर। हमारे पास 9 मिनट है, मैं 9 मिनट में जो समझा हुआ आपको, ये टेबल कैसे बनाया, फिर और एक ग्राफ बना के समझा देता हूँ। फिर आप जब आप डेटा एंट्री करके, जब आप डेटा एंट्री करो या टेबल बनाओ या ग्राफ बनाओ, कहीं पर भी क्वेरी आए तो मुझे कॉल कर देना डायरेक्टली, क्लियर? क्योंकि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। अभी देखो कैसे क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में तो सब यस ही है। अभी ये कैसे आया, अब परसेंटेज तो कर पाएंगे ना ये परसेंटेज में तो, ठीक है? डिवाइडेड बाय जितने क्वेश्चनर आपने भरवाई है, डिवाइड कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। चलो अभी इसने 100 क्वेश्चनर भरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अभी मैं थोड़ा आपको बड़ा कर दूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक ही, ये कैसे लाए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, देखो ध्यान से, ये टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल ध्यान से देखते जाना, ये कैसे आया। चलो बिलो 10,000, अभी देखो मैंने बिलो 10,000 को कौन सा कोडिंग दिया होगा? 1, 10 to 20,000 को कौन सा कोडिंग दिया होगा? 2, 20 to 30,000 को 3, 4, 5 और 6 कोडिंग दिया होगा। आपने जैसे सिंगल सिलेक्शन क्वेश्चन देखे ना, ये सिंगल सिलेक्शन क्वेश्चन है, इनकम पूछा है, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, डेटा एंट्री में जाना है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिल्टर पे जाना है। देखो फिल्टर में 6 ऑप्शन है, दिख रहे हैं 6 ऑप्शन? आपको क्या करना है, 1 by 1 सिलेक्ट करना है, पहले 1 सिलेक्ट करना है, इसलिए आपने जितने 1 लिखे होगे ना वो आ जाएंगे, पहले सिर्फ 1 सिलेक्ट करो तो ओके कर दो। अभी देखो सब 1 वाले आएंगे, देखो इसको सिलेक्ट कर दो, जितने भी 1 है ना सबको सिलेक्ट हो गए, सब तक देखो सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे काउंट में दिखाएंगे, ये काउंट देखो, यहाँ पे काउंट दिख रहा है, कितने काउंट है? 15 1 है, मतलब 1 दिए हो ऐसे 15 लोग हैं। तो देखो यहाँ पे 1 मतलब क्या, बिलो 10,000, ऐसे कितने लोग हैं? 15। फिर वापस जाना है ऊपर, आपने 1 सिलेक्ट किया, 1 के बाद क्या सिलेक्ट करना है? 2। अभी ऐसा मिलेगा कि 2 कितने लोगों ने दिया, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ चलो फिर से सिलेक्ट करो, काउंट में देखो 29 लोगों ने 2 दिया है, तो देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है टेबल, तो 29 लोगों ने 2 दिया है। फिर वापस जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट करो, 3 कितने लोगों ने दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 3 कितने लोगों ने दिया, तो नीचे जाओ सिलेक्ट कर दो सबको, कितने लोगों ने दिया? 27, तो 27 लोगों ने 3 दिया। फिर वापस जाओ, 4 कितने लोगों ने दिया, ऐसे आपको 1 by 1 करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर कितने लोगों ने 4 दिया? 11 लोगों ने। टेबल में जाओ, 11 लोगों ने 4 दिया। फिर कितने लोगों ने 5 दिया, तो 5 कितने लोगों ने दिया, तो देखो सिलेक्ट ही है,
8 लोगों ने 5 दिया है, तो 8 लोगों ने 5 दिया है, और 6 कितने लोगों ने दिया, तो 6 सिलेक्ट करो, सिर्फ सिलेक्ट, तो सिलेक्ट किया हुआ ही है, या कर दो 10 लोगों ने 6 दिया, 10 लोगों ने 6 दिया, इसका टोटल करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100, ये एक्सेल में 100 रिस्पोंडेंट ही है, 100 रिस्पोंडेंट ही है, इसलिए 100 हो गया। अगर आपके 150 रिस्पोंडेंट है तो आपका 150 होना चाहिए, नहीं होता है तो फिर से चेक करना है कि कहां पे मिस्टेक किया, या कहीं पर आपने डेटा एंट्री करने में भूल की हो, कहीं पे मिसिंग चला गया हो। अगर बीच में कोई एक मिसिंग होगा तो 100 नहीं होगा, मेरे में 100 नहीं होगा और आपने 150 नहीं होगा सपोज, इसलिए ये ध्यान रखना है। और परसेंटेज को गिनना आएगा ना, क्या करना है, इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करो और आप कितने रिस्पोंडेंट है मेरे, 100, मेरे 100 है, आपके जितने भी हो 150 तो 150, क्लिक कर दो और इसको ड्रैग कर दो, आ जाएगा परसेंटेज। अभी देखो मैं ग्राफ बनाना समझा देता हूँ। ग्राफ ध्यान से समझना, ग्राफ किसको सिलेक्ट करके बनाना है, फ्रीक्वेंसी को। दो चीज सिलेक्ट नहीं कर रही है, परसेंटेज भी सिलेक्ट नहीं करना है, टोटल भी सिलेक्ट नहीं करना है, याद रखना, परसेंटेज भी सिलेक्ट नहीं करना है, टोटल भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ पर्टिकुलर और फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ। देखो जब सिंगल सिलेक्शन हो ना, सिंगल सिलेक्शन, तो आप दो चार्ट में से, एक पाई चार्ट में से या कॉलम चार्ट में से, थोड़े पाई चार्ट बनाना, थोड़े कॉलम चार्ट बनाना, ठीक है, बेटर हो तो पाई चार्ट ही बनाना थोड़ी ज्यादा, सिंगल सिलेक्शन हो तो पाई चार्ट, और वो स्केल वाला क्वेश्चन हो ना तो वो कॉलम चार्ट बनाना है। चलो हम पाई चार्ट बनाते हैं। देखो मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर पाई चार्ट में जाओ, 3D में जाओ, आ गया, और यहाँ पे पूछेंगे कैसे लाना है, ऊपर देखो अलग अलग टाइप, देखो वैल्यू लानी है, आगे वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी निकाल देना है, फ्रीक्वेंसी को निकाल देना है, बस ये ग्राफ आपको रख देना है, सिंपल, टेबल बन गया, ग्राफ आ गया, हर एक के टेबल बना दो, हर एक के ग्राफ बना दो, ऐसे सिंपल सिंपल सिलेक्ट करके। फिर ये क्वेश्चन हो गया। अभी जब आप आगे जाते हो तो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 2 में सबको सिलेक्ट वापस कर देना है। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 का ऐसे करने जाओ तो इसको सबको सिलेक्ट कर दो, क्योंकि सबको वापस भी लाना पड़ेगा ना। देखो अभी सब आ गया, पूरा वापस आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही है, देखो 1 कितने लोगों ने दिया, 2 कितने लोगों ने, यहाँ पर भी 6 ऑप्शन होंगे, समझ में आया? तो आपको सेम टू सेम करना है, क्लियर? चलो और एक चीज आपको बता दूं, रखने कैसे है, कोई प्रोजेक्ट है, ये रहा प्रोजेक्ट, सपोज, बताओ ना कैसे रखने हैं। देखो ये आपको प्रोजेक्ट में कैसे रखने हैं तो आपको समझ में आए, इसलिए मैं दिख रहा हूं, बता रहा हूं। आपको ये प्रोजेक्ट दिख रहा है कंजन? यस सर। देखो ये डेटा एनालिसिस आया, डेटा एनालिसिस, हेलो, यस सर। देखो यस ऐसे सर। ऐसे आपको रखना है। अभी देखना ध्यान से, फटाफट 2-3 मिनट ही है हमारे पास। ये क्यों नहीं आ रहा है भाई, आ जाना। देखो टेबल, ध्यान से देखना, टेबल रखना है पहले, फिर उसका क्या रखना है, ग्राफ, टेबल रखना है, ग्राफ रखना है, और नीचे उसका क्या करना है, इंटरप्रिटेशन। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में ऐसे करना है। देखो टेबल ग्राफ इंटरप्रिटेशन, टेबल ग्राफ इंटरप्रिटेशन, टेबल ग्राफ इंटरप्रिटेशन। समझ में आया क्या करना है? इंटरप्रिटेशन कैसे करना है और क्या लिखना है वो हम बाद में देखेंगे। अब जब ये टेबल और ग्राफ बन जाए फिर मुझे आप बताना या कॉल करना, मैं आपको समझा दूंगा कि इंटरप्रिटेशन लिखा कैसे जाता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। समझ में आया? और सर मल्टी चॉइस में क्या करना है 12 और 13 वाले में? मल्टी चॉइस नहीं है वो, तो मल्टी वो चॉइस सर मींस 11A 11B ऐसा है उसमें, क्या ग्राफ और वो सब सेम। ग्राफ ऐसे बनेगा, उसमें ग्राफ है, देख इसमें क्या करना है, अगर स्केल वाला क्वेश्चन हो ना तो उसमें क्या करना है, देखो ये स्केल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है ना, जो ये स्केल वाला क्वेश्चन है, देखना। अब ये 6A मतलब क्या, वो पहला फैक्टर है ना हमारे में, वो उसको 6A बोलते हैं। उसमें आपको ऐसे टेबल बनाना, देख ऐसे टेबल बनेगा, देख लेना, ऐसा ऐसा टेबल बनेगा, ये रहा, कहां पे गया, ऐसा टेबल बनेगा, नीचे दिख रहा है तुझे क्वेश्चन नंबर 6 कि रिटर्न में हाईली इंपॉर्टेंट कितने लोगों ने बोला, इंपॉर्टेंट कितने लोगों ने बोला, न्यूट्रल कितने लोगों ने बोला। समझ में आया? ये फिर अभी आप मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मत गिनना, मैं आपको एक्सेल शीट दे रहा हूं, बट ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मत गिनना, ठीक है? सिर्फ आपको ये टेबल ही बनाना है कि हमारा जो पहला फैक्टर है वो, हमारा पहला फैक्टर कौन सा होगा, जो भी हमारा पहला फैक्टर है
उसको सिलेक्ट करना है और देखना है कि 1 कितने लोगों ने दिया, 2। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है? नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल करना। क्लियर? ओके सर। आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है? पहले क्वेश्चनर जो बाकी है वो भरवा लो, तब तक ये एक्सेल शीट बना के मुझे भेज दो, तो मैं एक बार ओके कर दूं तो जितनी क्वेश्चनर भर दिए वो तो एंट्री कर दो, सब अलग अलग। फिर किसी एक को भेज दो, वो कंबाइन कर दे, लेकिन चेक करके कंबाइन करना। फिर कंबाइन करने के बाद पता करना होना चाहिए किसने कौन सा एंट्री किया था। क्लियर? यस सर। फिर आप ये टेबल, मैं आपको ये एक्सेल शीट भेज रहा हूँ, किसी को भेजना मत ये, ठीक है? फिर हम टेबल और ये सब करते हैं। फिर आप टेबल और ग्राफ बना देना और इंटरप्रिटेशन में आपको समझाऊंगा। क्लियर? यस सर। कुछ पूछना है? समझ में आ गया ना? क्योंकि लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अभी एंड होने को है, ठीक है ना? यस सर। कुछ पूछना है तो मुझे कॉल कर देना, यस सर। लेकिन फटाफट कंप्लीट करना। चलो फिर हम एंड करते हैं फिर।